Hello guys, let us start with the solution of MCQs, lecture number 9, sound section. जो आपने लेक्चर देखा है उसके साथ जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेक्चर नंबर है 9. Quickly we'll go through all the questions. Question number 1. Question number 1 क्या है देखते हैं. A sonometer wire of density rho and radius r is held between the two bridges at a distance L, capital L apart. The tension in the wire is T, then the fundamental frequency is how much? Okay, the fundamental frequency N is 1 upon 2L root of T upon M. Small m is mass per unit length, which is mass density into volume upon length. Density into volume is pi r square into L upon L. So this is rho into pi r square. Substituting the value of small l, which is mass per unit length, as rho into pi r square, we get the answer n equals 1 by 2L root of T upon rho into pi r square. जवाब है डी, फोर्थ ऑप्शन. जवाब है डी, फोर्थ ऑप्शन. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. द टेंशन ऑफ in a sonometer wire is increased 9 times. Okay, so what will I write? T2 is equal to 9 times T1. Then the fundamental frequency of the wire is, fundamental frequency क्या हो जाएगी? N2 is equal to how many times N1? So N is directly proportional to root T. So I get N2 upon N1 is equal to root of T2 upon T1. N2 upon N1 is equal to root of 9 times T1 upon T1. N2 upon N1 is equal to 3. That gives us N2 upon N1, N2 is equal to 3 times N1. N2 is equal to 3 times N1, that is frequency becomes 3 times. कौन सा ऑप्शन है? The answer is the second option. चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. ये फास्ट नहीं है, ये एजम्पशन पे है कि आपने थ्योरी पढ़ा है, मल्टीपल को बिल्कुल संजीदगी से सॉल्व किया है. इसको समझने में कोई आसान या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर ये प्रोसेस फॉलो की गई तो. थर्ड क्वेश्चन, द सोनोमीटर वायर हैज लेंथ 100 सेंटीमीटर्स. ओके, 100 सेंटीमीटर. फिर क्या है? हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 330 हर्ट्ज. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 330 हर्ट्ज. फंडामेंटल यानी क्या? या ऐसा वाइब्रेशन हो रहा है उसका, यानी L इज इक्वल टू हाउ मच? लैम्बडा बाई 2. 100 is equal to lambda by 2. Lambda will be equal to 200 सेंटीमीटर. ओके, निकाल के रखा, देखते हैं क्या पूछा है उन्होंने. देन द फंडा नहीं, क्या है? द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2 मीटर. लैम्बडा इज इक्वल टू 2 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 330 हर्ट्ज. V इज इक्वल टू n लैम्बडा, 330 into 2, that is 660 meters per second. V is equal to 660 मीटर प्रति सेकेंड. जवाब है बी, सेकंड ऑप्शन. बी, सेकंड ऑप्शन. चलिए चौथे सवाल का रुख करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, सोनोमीटर बेस्ड. द टेंशन अप्लाइड टू अ वायर of length 1 meter and its mass is 1 gram. If it is to vibrate with a fundamental frequency of 50 hertz, then okay, length of the wire is 1 meter, mass of the wire is 1 gram, that is 10 raised to minus 3 kg. So mass per unit length, sorry, ये capital M है. So mass per unit length is capital L upon L, that is 10 raised to minus 3 upon 1, that is 10 raised to minus 3.
ये क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ हो गया। उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना है 50 हर्ट्स के, 50 हर्ट्स के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना है। तो क्या पूछा है बच्चों, पूछा है कि टेंशन कितना होगा। ओके, n इज इक्वल टू 1/12 रूट ऑफ t बाय m, 4l square n square is equal to t by m, t is equal to 4l square n square m, 4 into 1 square into 50 का square into 10 raised to the power minus 3. This will be equal to 50 into 50 into 4 divided by 1000. The answer is 10 Newton. The answer is 10 Newton. Option is B, second one. Option is B, second one. Question number 5. Question number 5. A wire of length 20 centimeter is stretched by a load of 1 kg weight. 20 centimeter stretched by a load of 1 kg weight. If the linear density of the wire, यानी mass per unit length, if the linear density of the wire यानी mass per unit length is 0.01 grams per centimeter, 0.01 grams per centimeter, units को बड़े गौर से देखिएगा, then the speed of the transverse wave, speed of the transverse wave v पूछा है। एक बार मैं पढ़ लेता हूं क्वेश्चन को। वायर लेंथ, लोड, डेंसिटी, स्पीड। ओके, v is equal to root of t upon m. This is 9.8 न्यूटन, 1 kg वेट होता है 9.8 न्यूटन। दिस इज इक्वल टू 10 raised to minus 2 into 10 raised to minus 3 upon 10 raised to minus 2। ग्राम को kg, सेंटीमीटर को मीटर, दिस इज kg पर मीटर, ये गया 10 raised to minus 3 आया। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9.8 अपॉन, इसका कोई काम नहीं है, अपॉन 10 raised to the power minus 3। So how much is the answer? The answer is 9.8 को 10 लिख दो, ऊपर चला जाएगा 100 आएगा आंसर डायरेक्टली, 100 मीटर पर सेकेंड। 9.8 की जगह 10 लिख दो, दिया नहीं है लेकिन जिस तरीके से आंसर है, आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन। यानी 9.8 एग्जैक्ट से करो, इसको 10 कर दो तो ये आता है 9.8 इंटू 1000 का स्क्वायर रूट, ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 99 मीटर पर सेकेंड। जो मैंने 100 लिखा है, उन्होंने 99 दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। द आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 5। चलो 6th क्वेश्चन का रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ अ सोनोमीटर वायर इज 1 मीटर। ओके, द लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर इज 1 मीटर। फाइन। If the fundamental frequencies are in the ratio 1:2, इस पार्ट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n1, इस पार्ट की है n2, सो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू 1/2, 1/2। फाइन। सो n1 L1 इज इक्वल टू n2 L2, n1 अपॉन n2 is equal to L2 by L1. So L2 by L1 is equal to 1/2. 2 times L2 is equal to L1, equation number 1. And L1 plus L2 is equal to 1, that is 100 centimeter, equation number 2. L1 के जगह पे 2 times L2 लिख देंगे यहाँ से, L1 के जगह पे 2 times L2 plus L2 is equal to 100, 3 times L2 is equal to 100, L2 is equal to 33 and L1 will be equal to 66। यानी यहाँ पे ब्रिज रखना पड़ेगा। पहला ब्रिज आएगा यहाँ से 33 सेंटीमीटर की दूरी पर, ब्रिज का ही पूछा है ना उन्होंने, 33 सेंटीमीटर की दूरी पर, और
66 सेंटीमीटर की दूरी पर। सो 33 सेंटीमीटर और फिर यहाँ पे 66, तो द रेशियो दिस इज 66 एंड 33। उन्होंने क्या पूछा है, वेयर शुड द ब्रिजेस बी प्लेस्ड टू डिवाइड द वायर इनटू 2 सेगमेंट्स। तो ब्रिजेस हमको कहाँ रखने हैं, तो यहाँ पे 33 पे और 66 पे ब्रिज रखना है। द आंसर इज 2/3 मीटर, ये सेंटीमीटर है ना, एंड 1/3 मीटर, 1/3 मीटर। The answer of question number 6 therefore is B, second option. The answer is B, second option. चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 सबके जवाब लिखे हुए हैं। अब बचे हुए 4 सवाल कुछ ऐसे टाइप के होंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आगे पीछे, दैट्स इट। ये 2 को छोड़ देते हैं ताकि आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। लेट अस स्टार्ट विद द 7th क्वेश्चन। व्हाट इज इट? सोनोमीटर वायर 110 सेंटीमीटर लंबी है, L इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर। ये वो वायर है, ओके। फिर क्या हुआ है, देन द ब्रिजेस बी प्लेस्ड बिलो द वायर सो दैट the two segments can emit frequencies 3:2। same question है, 3:2, n1 upon n2 is equal to 3/2। it is l2 upon l1, inversely proportional है इसलिए 3/2। l2 upon l1 is equal to 3/2। so 2 times l2 is equal to 3 times l1, equation number 1। 110 सेंटीमीटर टोटल लंबाई है, so l1 plus l2 is equal to 110, इक्वेशन नंबर 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स L1 प्लस 2 टाइम्स L2 इज इक्वल टू 220। ये वैसे ही लिखूंगा, माइनस 2 टाइम्स L1 माइनस नहीं 2 टाइम्स L1 माइनस 3 टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले लिया, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस ये कट हो जाएगा। 5 टाइम्स L2 इज इक्वल टू 220, L2 इज इक्वल टू 4 आएगा, ये 44 सेंटीमीटर आएगा, 44 सेंटीमीटर आएगा L2। और दूसरा ब्रिज L1 कितना है, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 110, L1 इज इक्वल टू 110 minus 44, this is 66 सेंटीमीटर। 44 and 66 सेंटीमीटर जवाब है दोस्तों हमारा। आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, हार्डली एनी डिफरेंस इन दैट। ये भी वैसा ही है क्या? अ सोनोमीटर वायर इज 110 सेंटीमीटर स्ट्रेच्ड, ओके। लंबाई है 110 सेंटीमीटर, is stretched with the tension. The wire is divided into 3 segments by placing 2 bridges। 3 टुकड़े में बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, ये यहाँ भी वैसे ही हो रहा था, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। frequencies in the ratio 1:2:3। so n1 is to n2 is to n3 is equal to 1:2:3, यानी L1 is to L2 is to L3 will be in the ratio 1:1 is to 1:2 is to 1:3, यानी x/2 and x/3 ये लेंथ आएंगे। टोटल लेंथ है 110, so x plus x/2 plus x/3 is equal to 110। 6x plus 3x plus 2x is equal to 660। 11x is equal to 660, x will be equal to 60, x will be equal to 60। then second is x/2, it is 60 upon 2, that is 30, and third is x/3, that is 60 upon 3, that is 20। 3 लेंथ क्या पूछा है उन्होंने, a sonometer wire of length 110 centimeter is stretched with a tension and fixed at the end। the wire is divided into 3 segments by placing the bridges यहाँ और यहाँ
3 टुकड़े हो गए इसके, 1:2:3 फ्रीक्वेंसी में है। देन द लेंथ विल बी 60, 30 एंड 20। जवाब है ए फर्स्ट ऑप्शन, जवाब है ए फर्स्ट ऑप्शन। चलिए रुख करते हैं 9वें सवाल का। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोनोमीटर वायर इज एन। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोनोमीटर वायर इज एन if the tension is increased 4 times. Tension is increased 4 times. Okay, T2 is 4 times T1, right? And the length is doubled. L2 is equal to 2 times L1. नई frequency क्या होगी? N2 is equal to how much? N2 upon N1 is equal to 1 upon 2 L2 root of T2 upon M upon 1 upon 2 times L1 root of T upon M, that is L1 upon L2 into root of T2 upon T1, L1 upon 2 times L1 into root of T2 N2 upon N1, N2 upon N1 is equal to, अरे 1 आ रही है, यानी N2 is equal to N1. No change in the frequency? Yes. The answer is B, second option. The answer is B, second option. चलो guys, शुरू करते हैं आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा गौर से. क्वेश्चन नंबर 10. When the string of a sonometer of length L between the bridges vibrate in the first overtone, फर्स्ट ओवरटोन ये है भैया फंडामेंटल, और ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन. ओके, देन द एंटीनोड फॉर्म्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग विल बी, एंटीनोड फ्रॉम वन एंड, यहाँ से एंटीनोड, यहाँ पे पहला एंटीनोड है लैम्बडा बाय 4, फिर यहाँ पे नोड है लैम्बडा, यहाँ पे एंटीनोड है 3 लैम्बडा बाय 4, सॉरी लैम्बडा बाय 2, ये 0 लिया, यहाँ पे लैम्बडा बाय 4 पे एंटीनोड, लैम्बडा बाय 2 पे नोड, 3 लैम्बडा बाय 4 पे एंटीनोड और लैम्बडा पे नोड. क्या पूछा है उन्होंने? नोड पूछा, एंटीनोड पूछा है. एंटीनोड इज फॉर्म्ड. ओके, एंटीनोड इज फॉर्म्ड एट लैम्बडा बाय 4 एंड लैम्बडा. अरे एंटीनोड इज फॉर्म्ड एट लैम्बडा बाय 4 एंड 3 लैम्बडा बाय 4. है क्या ऑप्शन? एंटीनोड बनेगा लैम्बडा बाय 4 और 3 लैम्बडा बाय 4 पे, दैट इज बी. तो 1 से 5 और 6 से 10, 6, 7, 8, 9 और 10. दैट्स इट. 10 सवाल हमारे आज के खत्म हो चुके हैं. सारे न्यूमेरिकल्स थे लगभग. आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.